Bachcho, let us discuss spring balance now. It is a very important device which is used in the questions related to mechanics. You must have seen a spring balance in your home, okay? Sometimes we need to weigh some bodies and we do not have actual weighing balance. Then what we do? We bring a very cheap device which is called spring balance, where there is a, I'll just show you the diagram. See, this is a spring balance in which there is a spring, okay, and then there is a hook connected to it, and we hang objects on this hook. Now we know that when we apply any force on a spring, what happens is it is extended. So what is the concept of spring balance is that the extension of the spring is actually marked. Okay, extension of spring is marked in the spring balance whenever the spring is extended by some amount. Okay, suppose the spring is extended by this much amount. Suppose this much amount we can mark here as 1 kg. Okay, 1 kg. If it is extended by more distance, then we can write 2 kg, and in this way the spring balance is marked. Okay, so when you suppose this is the marker which gives the reading. So when we put m, the reading comes out to be m kgs. If we put suppose 2m mass on the hook, then the reading will be slightly lower. It will show you 2m as the reading. Okay, but actually if we think that it tells you the weight of this block, then we are wrong. Actually what it does is it measures the force on the hook. Okay, let me read the statement. It does not measure the weight. It does not know that what object is being hanged on the hook. It only tries to measure the tension or the force applied on this hook. So if you apply 100 Newton, then it will read 100 Newton. If you apply 200 Newton, it will read 200 Newton, irrespective of mass of object which is hanging. Okay, it only measures the total force applied on the hook. It measures the force exerted by the object at the hook. Okay, so let us take one simple question to understand this. Chalo. A block of mass 20 kg is suspended through two light spring balances. Only one spring balance is there. Okay, so I will cut this to light spring balance as shown in figure. Calculate the reading of spring balance. Okay, so what we do is we find the force here. Okay, by doing the thing which we always do, we make the free body diagram of the block hanging from this hook, and we will see that how much force is applied on the hook by this block. So obviously this block will feel mg amount of force in the downward direction, and mg, 20 is its mass, so mg will be 200 Newton. Okay, in the downward direction. And suppose F amount of force is applied by the hook on the block. So we can say that this same amount of F will be applied on the hook of the spring balance by the block. ठीक है, तो equilibrium है, because we know कि यहाँ पे equilibrium होगा block के लिए, we can directly write F is equal to 200 Newton. ठीक, directly better we can say that F is equal to 200 Newton. So reading will be 200 Newton only. Reading is equal to 200 Newton, and in terms of kg, if we want to write, we will just divide by g. So it will be equal to how much? It will be equal to 20 kg directly. Okay, in this case we understand that only the weight has been measured directly. But suppose if I hanged one more block, okay, then what will happen? Okay, I think that this is clear to you. Now let me
clear this screen and we can do one more question. Okay, I'm improvising this question for you. देखते हैं if you are able to do this or not. देखो, suppose there is a 20 kg block and we take this system into a lift. ठीक है, let us take this system into a lift. इसको एक लिफ्ट में ले चलते हैं and let us start moving the lift in the upward direction with some acceleration. ठीक है बेटा, तो अगर इस लिफ्ट को ऊपर की ओर मैं ले जाऊं, सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इस लिफ्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, देन व्हाट शुड बी द रीडिंग ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस? लेट अस अंडरस्टैंड. ओके, क्या ये वेट जितना ही मतलब 20 kg ही बताता है या ये कुछ और रीडिंग बताता है? हम लोग देखते हैं बेटा. सी, बिकॉज the lift is moving, the block should also be moving in the upward direction with some acceleration which is same as the acceleration of the lift. ठीक है, नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स होगा, the downward force on it by the earth will be 200 Newton only, and in the upward direction suppose कर लेते हैं बेटा कि इस पे जो फोर्स लग रहा है हुक की वजह से, due to the hook is suppose F, and also there is an acceleration in the upward direction of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इतना एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक पर ऊपर की ओर ड्यू टू इट बीइंग प्रेजेंट इन द लिफ्ट. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बेटा इस पर नेट फोर्स क्या है ऊपर की तरफ? F. नीचे की तरफ क्या है? 200 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसका मास है 20, एक्सेलरेशन है 2, तो बेटा कैपिटल F का वैल्यू क्या आ जाएगा? 240. सो इट विल बी 240 न्यूटन. ठीक है, सो द फोर्स इज इंक्रीज्ड नाउ. ठीक है, तो वो सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि ये स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजरमेंट करता है. तो रीडिंग की अगर मैं बात करूं, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो रीडिंग उतनी ही होती है जितना कि यहां पे हुक पे फोर्स लगता है. ठीक है, थर्ड लॉ से वी कैन से कि इस हुक पे भी इतना ही F फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा और वो उस फोर्स को मेजर करके अपनी रीडिंग बता देगा. ठीक है, सो रीडिंग इन यूनिट ऑफ न्यूटन वी कैन राइट एज 240 न्यूटन, बट अगर केजीज में लिखना हो तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड बाय G. ठीक है, इसको अगर mg कंसिडर कर ले तो इसका m अगर रीडिंग का निकालना होगा तो G से डिवाइड करना पड़ेगा. So it will be 24 न्यूटन. 24 न्यूटन. ऐसा क्यों हुआ बेटा? बिकॉज देखो इस बार ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसको अपवर्ड फोर्स एक्स्ट्रा चाहिए होगा सो दैट इट कैन एक्सेलरेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो इसको ऊपर एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स हुक लगाएगा वो इसके mg से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए. ओके, सो दिस फोर्स 240 Newton is more than mg, then only this block can accelerate in the upward direction. अगर ये exactly F is equal to 200 Newton होता तो फिर ये ब्लॉक ऊपर की ओर एक्सेलरेट नहीं हो पाता. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो आपको ये याद रखना है कि भाई इसके नीचे कुछ भी ब्लॉक टंगा हो, डायरेक्टली आप उससे रीडिंग नहीं बता सकते. यू हैव टू अप्लाई, ठीक है, द लॉज ऑफ न्यूटन and then find the force on the hook before finding the reading. हुक पे जितना फोर्स होता है उसको वो ही मेजर कर पाता है. ठीक है बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज कंस्ट्रेन्ड मोशन. कंस्ट्रेन्ड मोशन मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. ओके, कंस्ट्रेन मतलब क्या होता है? अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं, कंस्ट्रेन यहां तक बस. ठीक है, कंस्ट्रेन मतलब क्या होता है? एनी ऑब्लिगेशन, एनी रूल. ठीक है, एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अकॉर्डिंग टू अ रूल. ठीक है, किसी नियम के हिसाब से चलता है कोई ऑब्जेक्ट, देन दैट मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेन्ड ऑब्जेक्ट. इज कॉल्ड कंस्ट्रेन्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट इज मूविंग अकॉर्डिंग टू सम रूल, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेन्ड मोशन. तो यहां पे दिखाता हूं मैं, देयर आर सिचुएशंस इन विच
द एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मे नॉट बी सेम। ऐसा हो सकता है कि सिस्टम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा एंड दे आर नॉट मूविंग टुगेदर, उनका जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग है। उस केस में हम लोगों को उनके एक्सेलरेशंस को डिफरेंट वैल्यूज को निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और वो हमें कहां से मिलती है, उनके बीच के रिलेशन को पता करके कि कैसे उनका मोशन का रिलेशन होगा। ठीक है, तो वी गेट सच सिचुएशंस इन केस ऑफ मूवेबल पुलीज और बॉडीज इन कॉन्टैक्ट वेयर ईच बॉडी इज फ्री टू मूव, और हमें उनके मोशन के बीच में कुछ रिलेशन निकालना हो सकता है सो दैट वी आर एबल टू फाइंड देयर इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस, वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट्स। ऐसा देखो, जैसे सपोज करो बेटा, बहुत सिंपल सा एक रिलेशन, पहले उन दोनों डायग्राम्स पे मैं बाद में जाऊंगा, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बेटा। सपोज करिए देयर इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऐसा वी हैव सीन पुलिस, तो मैं यहां एक पुली लगा देता हूं। ओके, नाउ अ स्ट्रिंग goes over the pulley and is connected to one more block. ठीक है, let us call the upper block as A and let us call the lower block as B. ये दोनों ब्लॉक्स हैं। अब मैं पूछूं आपसे कि if B block moves by some distance, suppose करो XB, ठीक है, इसकी डिस्टेंस के लिए मैंने एक सबस्क्रिप्ट लगा दिया यहां पे B, तो मान लेते हैं कि XB ये नीचे जाता है। ओके, और मुझे नहीं पता कि A कितना जाएगा, तो आई कैन राइट कि ये कितना जाता है, XA डिस्टेंस जाता है। नाउ कैन यू टेल मी, कैन यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन XA एंड XB? अगर ये XB चलता है और ये XA चलता है, तो XA और XB में क्या रिलेशन होना चाहिए? बहुत ही सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ अ सिंगल स्ट्रिंग, तो जितना ये आगे बढ़ेगा उसको उधर से उतना आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एक स्ट्रिंग जो होती है ना, इट इज इनएक्सटेंसिबल, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, राइट? तो अगर सपोज करिए इसकी लेंथ को XB आगे बढ़ना है, तो मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितने से लंबा हो जाएगा? इट विल बिकम लेंथेंड बाय हाउ मच? बाय XB डिस्टेंस। ठीक है, तो ये और ये कितना डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कुछ भी हो, जैसे ये XA डिस्टेंस आगे बढ़ा उतनी ही देर में, ठीक है, तो वो उधर से कितना छोटा हो जाएगा बेटा? XA डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, बट टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग cannot be एनीथिंग नॉन जीरो, है ना? कोई भी प्रेजेंट नहीं हो सकता उसमें, जो टोटल चेंज इन लेंथ है वो होगा ही नहीं, क्योंकि बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो मैं लिख देता हूं, देखो चेंज इन लेंथ कितना लिख सकता हूं? चेंज इन लेंथ, इफ आई राइट, देखो ये बढ़ रहा है तो लिखा मैंने प्लस XB, फिर ये कम हो रहा है तो माइनस XA, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिला? XB इज इक्वल टू XA। सर आपने इतनी छोटी सी बात को इतना मैथमेटिकली क्यों समझाया? हमें तो ऐसे ही दिख रहा था कि अगर ये थोड़ा सा 2 मीटर नीचे जाएगा तो इसको 2 मीटर इधर आना पड़ेगा, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज। बिल्कुल, यू आर थिंकिंग करेक्टली बेटा, जो यहां पे जितना बढ़ेगा उतना ये आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो जितना B वाला नीचे जाएगा उतना ही A वाला आगे आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, बट सपोज कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लाइक इन दिस सिस्टम। देखो यहां पर क्या होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको एक डायग्राम लेकर। ये वाला डायग्राम हम लोग थोड़ा सा लार्ज बना करके देखते हैं बच्चों। देखिए बेटा, अगर आपसे पूछूं मैं कि इफ A इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर ये A ब्लॉक नीचे की तरफ जाने लग जाए, ठीक है, तो B ब्लॉक का मोशन आपको किधर की तरफ दिखाई देता है?
इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक विल ब्लॉक बी मूव? देखो सीधी सी बात है, ये स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, तो अगर आप ए ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल करते हो, इफ यू पुल दिस ब्लॉक ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग तो लंबी हो रही है, बट टोटल स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये मैंने बोला है, आई अगेन एक्सप्लेन दैट थिंग। तो इस पुली को किधर जाना पड़ेगा बेटा, ऊपर जाना पड़ेगा, सो दैट कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो क्या रह जाए, कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, तो एक एक्सप्लेनेशन में छोटा सा करने की कोशिश करता हूं, एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं आपके साथ, जिससे हम समझें कि भाई ये साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे। देखते हैं बेटा, सपोज करो कि ये ऊपर ही जा रहा है, जैसा कि आपने सोचा ये ऊपर ही जा रहा है, और ये पुली बी वाली जो बी ब्लॉक से कनेक्टेड पुली है, ये सपोज कर लेते हैं बेटा कितना ऊपर चला गया, x डिस्टेंस ऊपर चला गया। ठीक है, तो यू विल सी कि इफ दिस पुली मूव्स बाय x डिस्टेंस, तो पुली का जो नया सिचुएशन होगा, नया पोजीशन होगा, वो यहां आ चुका होगा। राइट, यहां पे मैं p डैश लिख देता हूं बेटा, इस जगह पे ये नई पुली आ गई है, तो आप देखोगे कि जो स्ट्रिंग होगा वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक, तो जितना पुली, ये पुली जब ऊपर चली गई है, व्हेन द पुली रीचेस हियर, दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, this part of the string and this part of the string will be useless, वो उधर चली जाएगी। ठीक है, तो अगर ये पुली ऊपर चली जाती है by some distance x, तो आपको कितना स्ट्रिंग मिल गया एक्स्ट्रा, जो कि अब यूजफुल नहीं रहा इस साइड में। तो आप बोलोगे सर इधर से x और इधर से x, ठीक है, इधर वाली स्ट्रिंग भी फ्री हो जाएगी और इधर वाली स्ट्रिंग भी x डिस्टेंस की फ्री हो जाएगी। ये x डिस्टेंस है और ये x डिस्टेंस है, इतना फ्री मिल जाएगा हमको इस तरफ। तो बेटा इधर वाला ब्लॉक अब कितना नीचे चला जाएगा, इमेजिन करिए, आपको इधर से अगर 2x स्ट्रिंग मिली है, तो वो सब उधर जा करके उधर की लेंथ बढ़ा देंगी और इधर कितना मूवमेंट होगा, 2x का मूवमेंट होगा। राइट, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि x ऑफ a मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय a विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, देखो, ऑफ x, और x क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय b, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा xa विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xb, मतलब a का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मूव्ड बाय a will be equal to twice of distance moved by B block। ठीक है, अगर बेटा इस इक्वेशन को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर इस इक्वेशन को मैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं, तो आपको वेलोसिटी में भी रिलेशन मिल जाएगा। देखिए dxa by dt, करेक्ट, वो क्या मिलेगा हमें, va, मतलब वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ सकते हैं, xb का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dxb by dt। ठीक है, और वी कैन राइट इट एज vb। तो हमें ये वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मिल गया बच्चे, है ना। a का जो वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी ऑफ a विल बी ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b। तो अगर ये बेटा 2 मीटर पर सेकेंड से, समझते हैं इसको, अगर मैंने बोला कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, इसका स्पीड पहली बात तो नीचे होगा, यू कैन क्लियरली सी दैट, एंड सेकेंडली वो कितना होगा, va विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ vb। इफ vb इज 2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन va शुड बी 4 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड, this is obtained from constraint equations, है ना। ये relation between the motional quantities of two different objects is called constraint equation। तो समझते हैं इसको आगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाने की कोशिश की। वैसे एक और एग्जाम्पल है जहां पे ब्लॉक्स हैं, पुलीज नहीं है, स्ट्रिंग्स नहीं है, यहां पे क्या है बेटा, ब्लॉक है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि ए को थोड़ा सा राइटवर्ड मूव करो, ठीक है,
ए को थोड़ा सा राइटवर्ड मूव करो, तो इन विच डायरेक्शन विल ब्लॉक, or I should say sphere B move? In which direction will the sphere B move? So you will say कि sir, if the block A shifts towards right by some amount, suppose करो उसका जो नया situation है बेटा वो ये हो गया, तो अब क्या हुआ, स्फीयर को नीचे आने के लिए स्पेस मिल जाएगा। देखिए आप, अगर ये थोड़ा सा भी राइट शिफ्ट होता है तो इतना स्पेस ये फ्री हो जाता है। सो द sphere can shift down, ठीक है, the sphere can shift down. So you can understand that if A moves in the right direction, then B moves in the downward direction. तो ये आपको देख करके कभी कभी पता चल जाएगा, कभी कभी स्ट्रिंग्स के लिए भी देख करके पता चल जाएगा, but we have to understand a process in which we can always tell how the motion of two bodies will be connected in this type of cases. ठीक है, तो उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। वहां पे स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके मोशनल प्रॉपर्टीज को निकालते हैं, और जिसमें ब्लॉक्स होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि वेज कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहला होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट and the second one is wedge constraint, in which motion of two rigid bodies is observed. देखो string constraint में क्या होता है वो मैं समझाता हूं। When two objects are connected through a string and if the string have the following properties, ठीक है, दो बॉडीज हो, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो और उनके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही हो, वैलिड हो रही हो, वहां पे अप्लाई हो रही हो, तो हम स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनके डिस्प्लेसमेंट, उनके वेलोसिटी, उनके एक्सेलरेशन के बीच में हमें रिलेशन मिल सकता है। पहला है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। पहली बात ये होना चाहिए, इट शुड बी गिवन दैट द स्ट्रिंग इज inextensible. String should be what type of string? Inextensible. ठीक है, तब वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हम अभी सीखने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? यू शुड बी श्योर दैट स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। द नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज रिमेन्स टाइट, डज नॉट स्लैक। मतलब जैसे सपोज करो बेटा दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। ठीक है, मैंने बोला अगर बेटा ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, इफ द ब्लॉक बी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर स्पीड ऑफ ब्लॉक ए? तो आप बोलोगे सर क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो जितना इसको मूव करूंगा इस वाली को भी आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी मैंने लिख दिया 2 मीटर पर सेकेंड, बट ये तभी वैलिड है, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग इज टाइट। ठीक है, तो यहां पे तो ये वैलिड है, बट इफ सपोज दिस सिमिलर सिचुएशन इज लाइक दिस, दो ब्लॉक्स हैं बेटा, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, और ये स्ट्रिंग स्लैकेंड है, ढीली है। ठीक है, इट इज नॉट टाइट, एंड इफ आई नाउ आस्क यू कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसकी स्पीड कितनी होगी, एंड इफ यू से कि इसकी स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि ये स्ट्रिंग बेटा टाइट नहीं है अभी, तो डायरेक्टली ये दोनों का मोशन रिलेटेड नहीं है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से इन दोनों का मोशन रिलेटेड नहीं है। तो यहां पे तो वैलिड है बच्चे, बिकॉज द स्ट्रिंग इज टाइट एंड इट इज इनएक्सटेंसिबल। सो इफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स बाय सम डिस्टेंस x, तो इसको भी, इस वाले एंड को भी इधर की तरफ x डिस्टेंस से आना ही पड़ेगा, सो दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, थर्ड बात क्या है यहां पे, मैंने कंक्लूजन बता रहा हूं, देन द पैरामीटर्स ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स
हैव अ डेफिनेट रिलेशन बिटवीन देम। अगर ये दोनों पॉइंट्स की लेंथ कांस्टेंट है और स्ट्रिंग टाइट है, तब द पैरामीटर्स ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स जो कनेक्टेड हैं स्ट्रिंग से, उनके बीच में एक डेफिनेट रिलेशन होता है, राइट? तो वो डेफिनेट रिलेशन हमको कैसे मिलेगा, ये हमको देखना है, ठीक है? कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, वो स्ट्रिंग भी हमेशा टाइट है ड्यूरिंग द मोशन, देन हाउ कैन वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोशनल पैरामीटर्स ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, तो करना क्या होगा, आइडेंटिफाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन द प्रॉब्लम। पहली बात तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए, और दूसरा क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए किसके ऊपर हमें कंस्ट्रेंट इक्वेशंस लिखनी है। अज्यूम वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द पैरामीटर्स ऑफ मोशन, मतलब अगर कोई बॉडी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है, सो यू शुड अज्यूम कि अगर बॉडी ए है तो उसके लिए एक्स ए डिस्प्लेसमेंट होगा, बी के लिए एक्स बी होगा, लाइक आई हैड डन इन द एग्जाम्पल। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटीज के ऊपर आपको बात करनी है, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द वेलोसिटीज, तो वी ए वी बी ऐसे ले लीजिए, ठीक है, इन प्रॉपर डायरेक्शंस अज्यूम कर लीजिए, इस तरह से कुछ अजम्पशंस ले लीजिए। एक बात ध्यान रखना है हमको, ऑब्जेक्ट विच मूव्स अलोंग अ सिंगल लाइन कैन बी स्पेसिफाइड बाय वन वेरिएबल। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, तब उसके लिए एक ही डायरेक्शन में आप मोशनल प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स ले सकते हो। ठीक है, अगर वो दो डायमेंशनल में चल रहा है तो हो सकता है आपको वेलोसिटीज दो डायरेक्शन में लेनी पड़े, लाइक Vx और Vy ऐसा लेना पड़ सकता है अगर उसके पास दो डायरेक्शंस है। ठीक है, ये भी बोल देता हूं, द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ प्लेन आर स्पेसिफाइड बाय टू वेरिएबल्स, उनके लिए फिर दो वेरिएबल्स लेना पड़ता है। एंड द थर्ड थिंग इज, आफ्टर दैट यूज द फैक्ट दैट स्ट्रिंग लेंथ इज कांस्टेंट टू राइट कंस्ट्रेंट इक्वेशन। उनके जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है जो उनको कनेक्ट कर रही है, उसके सारे पार्ट्स का सम हमेशा एक कांस्टेंट होगा। इस फैक्ट को यूज करके हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ मोशन। वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ मोशन। मैं समझाता हूं यहीं पर, इन सारी बातों को एक बार अप्लाई करते हैं बेटा। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया था, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करिए कि एक प्लेटफॉर्म है, यहां पे दो पुलिस कनेक्टेड है एट द कॉर्नर्स, यहां पे दो पुलिस कनेक्टेड है, और पुलिस पे एक थ्रेड जाता है विच इज आइडियल, इनएक्सटेंसिबल है। ओके, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। लेट अस नॉट टेक दिस ब्लॉक, इस पूरी स्ट्रिंग को एक साथ बना देते हैं। देखो बच्चे, अब ये स्ट्रिंग सपोज करो यहां से पुली से होते हुए ब्लॉक दूसरे वाले पे कनेक्ट हो गई। ये ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया, ये कनेक्टेड है। ठीक है, एंड वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी। तो आप क्या करोगे, सपोज करो इस डिस्टेंस को x1, इसको x2 और इसको x3 ले लो। ठीक है, तो आपको ये पता है भाई कि टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू L। ठीक है, विच इज अ कांस्टेंट। देखो अब क्या हुआ कि आपने लिख दिया कि टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपने यहां पर टोटल लेंथ को मान लिया कि कैपिटल L है। जैसे ये वाला पार्ट जो इस पुली से A, तो A को कनेक्ट कर रहा है, वी हैव टेकन दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज x1। सिमिलरली द पुली, दिस पुली टू दिस पुली, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज x2, और उधर से सेकेंड पुली से बी ब्लॉक तक कनेक्टिंग स्ट्रिंग की लेंथ हमने क्या ले ली, x3 ले ली बेटा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या हो गया, L हो गया, विच इज अ कांस्टेंट। ऑब्वियसली अगर इधर से खींचोगे तो ये ऊपर जाएगा, इधर से खींचोगे तो ये ऊपर जाएगा, बट द टोटल लेंथ x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी अ कांस्टेंट।
अब ऑब्वियसली अगर सपोज कर लेते हैं बेटा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज करो va वेलोसिटी से, और इधर की तरफ ये नीचे जा रहा है सपोज करो vb वेलोसिटी से, ठीक है। तो आपको लगेगा कि x1 जो है बेटा दैट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, कम हो रहा है धीरे धीरे, और x3 जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ या डिस्टेंस क्या होता है, हम उसको स्पीड भी बोल देते हैं, वेलोसिटी भी, ठीक है। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 क्या हो सकता है, dx1 बाई dt, ठीक है। ऑब्वियसली ये नेगेटिव है तो इसको माइनस लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, va हो जाएगा, करेक्ट है। और dx1 बाई dt इज इक्वल टू माइनस va लिख सकता हूं, ठीक। सिमिलरली बच्चे अगर मैं x2 की बात करूं तो वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, dx2 बाई dt ये तो जीरो रहेगा, क्योंकि इसका जो चेंज है वो होने वाला नहीं है, ये कितना भी इधर उधर मूव करो बट ये लेंथ तो इतनी ही रहेगी, बिकॉज पुलीज आर रिजिडली फिक्स्ड, उनके बीच की जगह चेंज नहीं होने वाली। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा dx3 बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x3, तो ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो dx3 बाई dt एंड दैट विल बी इक्वल टू vb, ठीक है। बड़े होने का रेट वो vb के बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज। तो एक बार इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या लिख सकता हूं, dx1 बाई dt, ठीक है, प्लस ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो, प्लस dx3 बाई dt एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि L इज अ कांस्टेंट और उसका डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा हमको, जीरो। तो बेटा dx1 बाई dt क्या लिख सकता हूं यहां पे मैं, माइनस v1 प्लस, इसको प्लस लिख देता हूं मैं, प्लस dx3 बाई dt, वहां से देखिए आपको vb दिखाई देगा, ये va हो गया और वो vb हो गया, इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमें मिलता है कि भाई va इज इक्वल टू vb, ठीक है। बस डायरेक्शन उल्टे होंगे, इफ a मूव्स अपवर्ड b मूव्स डाउनवर्ड, एंड इफ a मूव्स डाउनवर्ड b शुड मूव अपवर्ड, डायरेक्टली ऐसा मिल गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, मैंने क्या बोला, यूज द फैक्ट दैट स्ट्रिंग लेंथ इज कांस्टेंट टू राइट कंस्टेंट इक्वेशन। एक कंस्टेंट इक्वेशन लिख दी, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज अ कांस्टेंट लिख करके उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, उससे आपको उनके बीच के वेलोसिटीज का रिलेशन मिल जाता है। अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स होती हैं बेटा सिस्टम में, देन व्हाट वी डू इज वी राइट मल्टीपल कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, मतलब अगर वहां पे दो स्ट्रिंग्स हैं तो दोनों के लिए टोटल लेंथ कुछ लिख करके इज इक्वल टू कांस्टेंट करना पड़ेगा आपको अलग अलग पार्ट्स के लिए, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये वाला रिपीट करता हूं, देखिए ये एक ब्लॉक था A और ये ब्लॉक है B, एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और आप ये देख सकते हो कि इफ दिस इज मूविंग डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी va, तो ये किधर की तरफ जाएगा, vb वेलोसिटी से अपवर्ड जाने वाला है। और इस क्वेश्चन को हमने एक सिंपल मेथड से भी किया था कि भाई इसको अगर x डिस्टेंस ले जाता हूं तो इधर से x और x स्ट्रिंग हमें फ्री मिल जाती हैं जो इधर ऐड हो जाती है घूम के। तो अगर ये x डिस्टेंस ऊपर जाता है तो ये 2x डिस्टेंस नीचे जाता है, राइट। तो वो हम देख चुके हैं, हम एक बार फिर से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। बेटा सपोज कर लेते हैं कि ये जो ऊपर से यहां तक की स्ट्रिंग है, पुली तक की, इतना पार्ट x1 लेंथ का है, करेक्ट। पुली P और Q के बीच में जो ये वाली स्ट्रिंग है, इसका लेंथ हम लोग सपोज कर लेते हैं x2 लेंथ है, एंड फ्रॉम पुली Q टू ब्लॉक A जितना लेंथ है स्ट्रिंग का, लेट अस टेक दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एज x3, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा बेटा? सपोज कर लेते हैं, ठीक है, लेट टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू हाउ मच? एल बोल देते हैं, ठीक है। टोटल मान लेते हैं यहां से यहां तक की स्ट्रिंग की लेंथ टोटल कितनी है? एल है। तो अगर मैं पार्ट वाइज लिखूं तो टोटल लेंथ कैसे लिख सकता हूं? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू एल, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं कि ये ऊपर जा रहा है तो x1 लेंथ देखो थोड़ी देर में ये पुली जैसे यहां शिफ्ट हो जाएगी, x1 लेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा, x2 लेंथ भी थोड़ा कम हो जाएगा, बट क्योंकि ये नीचे एज्यूम किया है हमने जाता हुआ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x3 थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हमें क्या मिलेगा बेटा? dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी प्लस dx3 बाई डी टी and this will be equal to 0 because total length is a constant, हमारी बात हो चुकी है। So if L is a constant तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। नाउ इफ आई आस्क यू कि x1 किस रेट से चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सर x1 इज चेंजिंग विथ द रेट vb, ठीक है, और वो नेगेटिव में लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखे तो vb वैल्यू ही पुट कर दो, विदाउट साइन ऑल्सो यू कैन डू। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि dx1 बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रिंग लेंथ x1, तो आप क्या लिख सकते हो? वो चेंज हो रहा है vb से, ठीक है, द रेट एट विच b ब्लॉक एंड द पुली p आर मूविंग, तो vb लिख दिया। वैसे ही x2 के लिए लिख सकता हूं बेटा कि वो भी देखो इधर से तो ये फिक्स्ड है, ये पुली यहां से, बट ये वाली ऊपर जा रही है b के साथ ही, तो वो भी थोड़ी सी कम हो रही होगी, लेकिन किस रेट से चेंज हो रही है? ठीक है, vb से। अगर उसके लिए बात करूं तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या है? va से x3 जो है वो बढ़ रहा होगा। चलो इसको भी मैं रेट ऑफ चेंज सीधे सीधे लिख देता हूं, va, और ये सब क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। वैसे एक्चुअली आपको ये माइनस माइनस में लिखते तो डायरेक्टली आ जाता, अभी माइनस हमें लग के मिलेगा, दैट इज va विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2vb, ठीक है। a की जो वेलोसिटी होगी, पहली बात तो कि वो डबल होगी b की, ठीक है। इस रिलेशन को देख करके आप क्या क्या समझ सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 2 मल्टीप्लाइड विथ vb, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ a इज ट्वाइस ऑफ vb, एंड द सेकंड थिंग इज देयर इज अ माइनस साइन व्हिच सेज दैट velocity of a is in the opposite direction of b। अगर b पॉजिटिव है मतलब ऊपर जा रहा है, तो a कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी रिलेशन में मैं बोलूं कि हमें पता है कि b is moving upward with 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो b की वैल्यू तो 2 रख सकता हूं, तो a की वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 और फिर ये 2, -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर b ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ b इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ 2 मीटर पर सेकेंड, देन a विल बी ऑब्जर्व टू कम डाउन विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ b, ठीक है। इस तरह से यही प्रोसेस होता है। अगर 2 स्ट्रिंग्स होती तो हो सकता है हमको x3, x4 और x4, x5, x6 ऐसे उनके लिए भी अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर व्हाट वी डू इज वी मेक इट अ कांस्टेंट, ठीक है। मान लेते हैं कि उसके भी टोटल लेंथ का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट करके फिर हम बॉडीज के मोशनल पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन निकाल पाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है।